رات کے 10 بج چکے ہیں۔ بھوتیا کہانی کا سلسلہ جاری ہے۔ دل تھام کر بیٹھیے اور کانوں میں ہیڈ فون لگا لیجیے اور دروازہ کی کنڈی لگا لیجیے، کیونکہ یہاں پر ڈرنا منع ہے۔ آج کی جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی وہ کالا جادو کی دنیا کی کہانی ہے۔ ایک ایسا تنتر منتر جسے کسی کی بھی جان چٹکی بجا کر نہیں جا سکتی ہے۔ پلک چھپکتے ہی کسی انسان چیل کوا بنا دیا جاتا ہے۔ چار دوست گھومتے گھومتے اس گاؤں میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ اس گاؤں سے انجان تھے، بے خبر تھے۔ انہیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ جس گاؤں میں وہ پھنس چکے ہیں وہ کالا جادو کی نگری ہے، جسے بلیک اور میجک کہا جاتا ہے۔ اور انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ دور دور تک ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور کسی سے بھی اس گاؤں کا نام پوچھتے تو ہر کوئی کہتا کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ سب کے سب مارے جاؤ گے۔ اب لڑکے جب یہ بات سنتے ہیں تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر میں کوئی اس گاؤں کا نام کیوں نہیں بتا رہا ہے۔ جس سے بھی پوچھ رہے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ تم باہری ہو، ترنت یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تو مارے جاؤ گے۔ دراصل جو لڑکے ہوتے ہیں وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ وہ بھارت کی جادو نگری میں پھنس چکے ہیں۔ جو لڑکے وہ اسم میں گوہاٹی کا ایک بہت خوفناک گاؤں ہے جس کا نام مایونگ ہے، یعنی کہ یہ جو گھٹنا ہے مایونگ گاؤں کی گھٹنا ہے، جہاں شام ڈھلنے کے بعد کوئی باہر نہیں نکلتا ہے اور گاؤں میں کوئی آتا بھی نہیں ہے، کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ اگر کوئی باہری اس گاؤں میں قدم رکھتا ہے تو وہ پھر واپس زندہ لوٹ کر نہیں جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر بہت ساری ایسی دھارنائیں ہیں، بہت ساری ایسی کہانیاں وہاں موجود ہیں۔ ویسے ایسے ہی ایک کہانی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، چار دوستوں کی کہانی جو اسم کے مایونگ گاؤں میں پھنس جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا کیا حیوانیت ہوتی ہے، یہ کن کن چیزوں کا، کن کن مشکلوں کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کہانی میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ جو کہانی ہے بہت زیادہ ڈراؤنی کہانی ہے، اس لیے ایسی کہانی کو اپنے بچوں سے دور رکھیے۔ مایونگ گاؤں کا بچہ بھی جادو ٹونا جانتا ہے، یعنی کہ ہر قدم پر چاروں لڑکوں کے اوپر موت کا سایہ منڈرا رہا ہے۔ مایونگ گاؤں کا مطلب بھی اتنا خوفناک ہے کہ آپ اس کا مطلب جانیں گے تو بالکل آپ بھی ڈر کے کانپ جائیں گے اور آپ کی روح ہے جو کانپ اٹھے گی۔ مایا شبد کا مطلب ہے بھرم، ایک چھلاوا۔ اس گاؤں میں جیسے ہی کوئی باہری گھستا ہے یا گھسنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ایک سائے کا ایسا لگتا ہے کہ کوئی سایہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور اس کو وہاں پر عجیب عجیب آوازیں سنائی دینے لگتی، کہیں کسی کے رونے کی، کسی کے چلانے کی، تو کہیں کوئی اس کا نام لے کر اسے ایسا لگتا ہے کہ اسے پکار رہا ہے۔ کافی ڈراؤنی آوازیں اس کو سنائی پڑتی ہیں۔ وہ پانی پیتے ہیں تو خون بن جاتا ہے، وہ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا ہڈی بن جاتا ہے کہ بھوک سے بے حال پریشان ہو جاتے ہیں اور اس گاؤں میں موت سے لڑ رہے تھے اپنی ایک ایک سانس کے لیے، اور ایک ایک سانس ان کی مانو بالکل کسی موت سے کم نہیں۔ ابھی وہاں پر ان کو ایک بچہ دکھتا ہے اور وہ اس بچے سے راستہ پوچھتے ہیں اور بچہ جو ہے ان کو راستہ بتا دیتا ہے۔ اب پھر وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں انہوں نے شروعات کی تھی وہ وہیں پر پھر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن حیران اور پریشان ہو کر پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ نشان بناتے ہیں کہ ہم اس راستے پر آ چکے ہیں اور دوبارہ ہمیں پھر اس راستے پر نہیں آنا ہے۔ لیکن وہ بے خبر تھے کہ یہ ایک مایا نگری کا جال ہے، جہاں وہ تو آ گئے لیکن یہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ اب وہ لڑکے نشان بنا کر پھر سے باہر نکلنے لگتے ہیں، لیکن جتنا بھی وہ پریاس کرتے ہیں بار بار فیل ہو جاتے ہیں، بار بار وہ خود کو وہیں پہ پاتے ہیں جہاں سے انہوں نے بھاگنا شروع کیا تھا۔ ایسے میں پھر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور تبھی ان کو پاس ایک جھیل دکھتی ہے اور وہاں پر وہ پانی پینے لگتے ہیں۔ تبھی جو جھیل ہے، جھیل میں وہ جیسے ہی پانی کو اپنے
हाथों में उठाते हैं और मुंह तक लगाते हैं तो देखते हैं कि जो पानी है वो पानी में से कीड़े निकल रहे हैं। वो जैसे ही ये देखते हैं पानी को फेंक देते हैं और फिर भूखे प्यासे बदहवास वहीं पर थोड़ी देर बैठ जाते हैं। वो रोने लगते हैं। अब उनको कुछ नहीं समझ में आता है कि आखिर में अब वो वहां से कैसे निकले। तभी जो उसका दोस्त था, उसने चारों में से उनका एक दोस्त था और इतना ज्यादा प्यासा था कि प्यास के मारे उसकी जान जा रही थी। वो तड़पड़ा रहा था। अब फिर क्या था, वो उसी तालाब में वो कूद जाता है। अब फिर तालाब में जब वो कूदता है तो पानी रहता है। उसके बाद से जैसे ही वो लड़का तालाब में कूदता है, तालाब में जो पानी था वो कीड़ों में बदल जाता है और उसके पूरे शरीर छलनी कर देता है। और देखते ही देखते लड़के का शरीर बिल्कुल छलनी हो जाता है और वो खत्म हो जाता है। उसके बाद तो तीनों दोस्त हैं वहां से निकलकर भागते हैं और बहुत ज्यादा डर सहम जाते हैं। भूख ने तो पहले ही उनकी जान ले ली थी। वहां पर वो भागते हैं और कुछ देर भागते भागते आगे पहुंचते हैं। तभी वहां पर उनको एक सफेद बाल वाली बुढ़िया दिखती है। तीनों में से एक लड़का तुरंत बुढ़िया के पास जाता है और कहता है कि दादी, हम रास्ता भटक गए हैं, दादी हमें रास्ता दिखा दीजिए, हमारी मदद कर दीजिए, हमारा एक दोस्त मारा गया। अब जो बुढ़िया दादी होती है वो पीछे पलट कर देखती है और वो अपनी झोली में कुछ ली रहती है और तुरंत अपनी झोली में हाथ डालती है और कुछ पाउडर निकाल कर उस लड़के पर फूंक देती है। और जैसे ही पर वो फूंकती है, लड़का कुत्ता बन जाता है। कुत्ता बनने के बाद भौंकने लगता है और अपने दोस्तों को काटने के लिए दौड़ाता है। अब जो उसके दोस्त थे वो बिल्कुल ये मंजर देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां से बिल्कुल आनन फानन वहां से भागते हैं अपनी जान बचाकर। कुत्ता काफी देर तक उनका पीछा करता है। फिर जो लड़के हैं किसी तरह से जान बचाकर वहां से भाग निकलते हैं। अब लड़के जो है दौड़ते दौड़ते चलते चलते बहुत ज्यादा थक चुके थे। तभी दोनों लड़कों की नजर एक बेर के पेड़ पर पड़ती है। अब वो भूख से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और अंधेरा काफी ज्यादा था। वो जल्दी जल्दी पेड़ तोड़ते हैं और बिल्कुल चबा चबा कर उसको खाने लगते हैं। और फिर जब वो 4-5 बेर खा लेते हैं, थोड़ी उनकी भूख शांत होती है तो दोनों लड़के एक दूसरे को देखते हैं और देखने के बाद बिल्कुल दंग रह जाते हैं और उनके हाथों से बेर गिर जाती है। वो देखते हैं कि वो उनके हाथों में बेर नहीं बल्कि वो चमगादड़ को खा रहे थे। और फिर वो देखते हैं तो उनके मुंह में यहाँ वहाँ खून लगा होता है और उनके हाथों में चमगादड़ होता है। वो तुरंत उस चमगादड़ को फेंक देते हैं और उल्टी करने लगते हैं। उल्टी करते करते तुरंत वहां से वो किसी तरह भागते हैं। भागते भागते बहुत ज्यादा अब उनको उल्टी आने लगती है और उनको प्यास लगती है। अब फिर उनको पास में ही एक नदी दिखती है। नदी बहुत दूर से ही चमक रही थी क्योंकि कहते हैं ना, जो नदी है, नदी का पानी रात में बहुत ज्यादा चमकता है। अब वही चमक देख वो नदी की ओर दौड़े दौड़े भागते हैं। बदहवास बेहाल वो नदी की तरफ किसी तरह पहुंच जाते हैं और नदी गिर जाते हैं और वहां अपने हाथों में पानी लेकर नदी का पानी पीने लगते हैं। तभी जब वो हाथ में पानी लेते हैं तो देखते हैं कि जो पानी है वो उनमें छोटे छोटे कीड़े निकल रहे थे। अब तुरंत पानी वो फेंक देते हैं। और फिर क्या था, बिल्कुल वहीं पे परेशान और बेहाल, एकदम भूख से परेशान, प्यास से एकदम उनकी जान निकल रही थी। प्यास के मारे वो छटपटा रहे थे। वहीं वो चीख चीख कर रोने लगते हैं, कहते हैं कि कोई तो हो जो मेरी मदद कर दो, नहीं तो है यहीं हमें मार दो, कोई तो हो जो मेरी मदद कर दो। अब जो लड़के वहां पर बहुत ज्यादा रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि कोई हमें पानी पिला दो, मेरी जान निकल जाएगी। अब वो चीखते चिल्लाते जो लड़के थे वो बेहोश हो जाते हैं। फिर उनकी आंख जब खुलती है तो देखते हैं कि एक औरत वो घर में पड़े हुए हैं। एक औरत उनको अपने बिस्तर पर लिटाई हुई है। और फिर जब वो देखते हैं तो वैसे ही इतना ज्यादा वो डर चुके थे। वो कहते हैं कि हमें जाने दो, प्लीज हमें बख्श दो, हमें मत मारो। औरत कहती है, बेटा तुम परेशान मत हो, तुम लोग बताओ क्या बात है, तुम कहाँ से आए हो। ये लड़के भूखे थे, प्यासे थे। उस महिला से कहते
कि क्या आप हमें कुछ खाने को और कुछ पीने को दे सकती हैं? हम बहुत दिनों से भूखे और प्यासे हैं। महिला तुरंत उनके लिए कुछ खाने के लिए लाती है और उनको पानी पीने के लिए देती है। लेकिन इस बार वो जो पानी है ना खून में बदलता है, ना कीड़े में बदलता है, ना ही वो जो खाना वो हड्डी में बदलता है। लड़के जल्दी जल्दी पूरा खाना खाते हैं और पेट भर के जी भर के पानी पीते हैं। उसके बाद तब जाकर उनके चैन पड़ता है। फिर वो अपनी पूरी दास्तान उस औरत को बताते हैं। वो औरत कहती है कि देखो, दरअसल ये जो गांव है मायूंग गांव, तुम यहाँ पर फंस गए और यहाँ से कोई भी जल्दी जिंदा निकलकर वापस नहीं जा पाता है। अब ऐसे में लड़के ये बात सुनते हैं तो और बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो बताते हैं कि मेरा जो दोस्त, हम लोग 4 लोग थे, 2 दोस्त हमारे मारे गए हैं। अब वो उस औरत के पैर पकड़ते हैं, कहते हैं कि आप मेरी माँ समान है, प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकाल दो। वो औरत कहती है कि देखो, मैं तुम्हारी मदद तो करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें आश्वासन नहीं दे सकती हूँ कि तुम यहाँ से जिंदा लौटोगे या नहीं लौटोगे। वो औरत उसको एक गुड्डा बना कर देती है और जिस गुड्डे में काफी ज्यादा सुइयां होती हैं। औरत कहती है कि देख, तुम रास्ते में से ये जो गुड्डा है तुम्हें रास्ता दिखाएगा और तुम जहाँ ये तुमको ले जाएगा तुम वहां पर जाना, और जैसे ही तुम पर किसी भी तरह का कोई आक्रमण होगा या तुम्हें जब भी कोई परेशानी होगी, इसमें 50 सुइयां है और 50 सुइयां तुम्हारी तकदीर का फैसला करेंगी और तुम्हें यहाँ से बाहर निकालेंगी। जब भी तुम पर कोई मुसीबत आएगी, तुम एक सुई निकाल कर बाहर फेंक देना, वो मुसीबत वहां से टल जाएगी। लेकिन देख, तुम लोग 2 लोग, तो दोनों पर मुसीबत आएगी तो तुम्हें 2 सुइयां निकालनी होगी। लेकिन हर मुसीबत पे सुइयां मत निकालना, उसका सामना भी करना, वरना शायद तुम इसी गांव में हमेशा के लिए फंस कर रह जाओगे और अपने 2 दोस्तों की तरह तुम भी मारे जाओगे। तो इसलिए इस गांव से तुम्हें बहुत होशियारी और तुम्हें बहुत चालाकी से निकलना होगा। तो जब ये बात उस औरत की सुनते हैं तो उसका धन्यवाद करते हैं और वो बुढ़िया लेकर निकल जाते हैं। फिर तभी वहां पर जाते हैं तो उसका जो एक दोस्त था जो कुत्ता बन चुका था, वो उसको रास्ते में मिलता है और फिर वो उसको काटने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो एक सुई 2 सुई निकाल कर फिर बाहर फेंक देते हैं। वो कुत्ता अपने आप गायब हो जाता है। अब फिर वो थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं। फिर से उनको सफेद बाल वाली बुढ़िया दिखाई देती है। वो बुढ़िया कहती है कि मैं तुम्हारी कुछ कहो तो मैं तुम्हारी मदद करूं। उसके बाद से वो बुढ़िया जैसे ही अपनी पोटली में से कुछ निकाल कर उनके ऊपर फेंकने की कोशिश करती है, वो लड़के तुरंत 2 सुई निकालते हैं और बाहर फेंक देते हैं। बुढ़िया भी फिर अचानक गायब हो जाती है। अब फिर ऐसे लड़के कुछ देर आगे बढ़ते हैं। फिर उनको उसी बेर का पेड़ मिलता है। उनको बहुत ज्यादा भूख लग चुकी थी तो फिर वो बेर जो है तोड़कर खाने लगते हैं। लेकिन फिर वो देखते हैं कि जो बेर है वो चमगादड़ बन जाता है। अब फिर वो 2 सुइयां निकाल कर फेंकते हैं और जो बेर है, अब वो बेर को खाते हैं तो वो चमगादड़ नहीं बनता है। वो जी भर के बेर को खाते हैं और कुछ बेर तोड़कर अपने कपड़े में बांध कर रख लेते हैं। अब कुछ वो देर आगे बढ़ते हैं। फिर उनको प्यास लग जाती है। अब फिर वो एक तालाब के पास पहुंचते हैं और उससे वो पानी पीने लगते हैं। तभी उस तालाब से कीड़े निकलने लगते हैं। फिर वो 2 सुइयां निकाल कर बाहर फेंक देते हैं तो वो पानी बन जाता है। वो पानी पीते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर उनको एक बच्चा दिखता है। बच्चा कहता है, कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। अब फिर उसके बाद से फिर लड़के 2 सुइयां निकालते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही एक एक करके वो सारी उनके रास्ते में जो भी बाधाएं आती वो सुइयां निकालते जाते हैं और अंत में वो मायूंग गांव पार कर जाते हैं। और जैसे ही मायूंग गांव पार करते हैं, सुबह के 6 बज चुके थे और सूरज की किरणें उनको दिखाई देने लगती हैं और आदमी भी वहां पे उनको दिखाई देने लगते हैं। अब फिर वहीं पे बिल्कुल
بیٹھ جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ تبھی وہاں پر ایک آدمی گزر رہا تھا تو پوچھتا ہے کہ بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ تو بتاتا ہے کہ دراصل ہم مایوں گاؤں میں پھنس گئے تھے اور 2 دوست ہمارے وہاں پر مارے گئے۔ پھر وہ آدمی ان دونوں لڑکوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو ان کے گھر چھوڑ دیتا ہے۔ تو دوستوں یہ خوفناک کہانی آپ کو کیسی لگی؟ آپ ہمیں کمنٹ باکس کر کے اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 10 بجے ایک اور نئی خوفناک کہانی کے ساتھ۔ اگر آپ خوفناک کہانی سننے کے شوقین ہیں تو آپ صحیح جگہ آئے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے، اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کر کے ضرور بتائیے گا۔